So good evening, everyone, and welcome to our Saturday School Investors Education Initiative. Myself, Rakesh, and I heads one of Delhi's branch. So in continuation to educating investors, we have came with one more agenda on this Saturday. As of now, it has not been decided. ये agenda का नाम है, but इसको मैं simplified करना चाहूँ. So what this agenda is all about? It is all about equity investing, and that is too with the route of SIP. So how SIPs can help you to create wealth over a period of time, that is something which we are going to understand out of this session, and how somebody can fulfill their financial goals, aspirations by the way of investing. We obviously will discuss compounding, which is known as the eighth wonder of the world, and how it works actually, ये किस तरह से काम करता है. So to take us through this session, I have Mr. Rajat Handai is with me. Rajat is a head of group distribution and central initiatives at HSBC Mutual Fund. And Rajat has been a part of HSBC since last 24 years. Obviously, a couple of decades experience. अगर मैं financial industry की बात करूँ, so he has a couple of decades of experience in. And by qualification, Rajat is graduate in science and postgraduate in business management. So I'll not take much of time. I'll hand over the part of session to Rajat sir. So sir, over to you. Thank you, Rakesh ji. And this is a wonderful initiative, Saturday School. आपने तो बचपन की याद दिला दी. I think this is very important. I think it is important for everybody who is associated with the financial services, and even more important for those people जो अभी financial services में और world of investing में नए हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये नए लोगों के लिए और is it for old people. I think this is a beautiful initiative. I want to congratulate you and your organization for starting this. So आज जो हमारे पास टॉपिक है, what you're going to discuss today, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, is about equity investing in a very simple manner. Now let me tell you, it's a very interesting thing, and आपको ये जान के ताज्जुब भी होगा, and maybe you already know this fact. और वो ये है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में फोटोस्टैट, साइक्लोस्टाइल, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं. वो एक ही चीज यूज करते हैं, उसका नाम है जेरोक्स, राइट? जेरोक्स इज नॉट द मेन मशीन. जेरोक्स इज अ ब्रांड. ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज द सेम थिंग नाउ इज बीइंग यूज्ड फॉर द वर्ड एसआईपी. नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या हमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग. उनको एक ही चीज पता है, We want to invest in SIP. ये इतना पॉपुलर हो गया है एंड इतना फेमस हो गया है that I think more and more people are now coming into this. I was just reading last time that somewhere that more than 9 crore investors और SIP folios now exist, और ये नंबर मेरे ख्याल से 1 या 2 करोड़ भी नहीं था if you go back recent past. So let's talk about SIP today, systematic investment plan, and what I'll do is I'll take you through some of the interesting कॉमिक स्ट्रिप्स एंड कंसेप्ट्स, उनकी बात करते हैं. उसके जरिए we'll try to make this concept very very simple and very very easy to understand. Let's start with goals. I think सबके goals होते हैं, और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दो दोस्त हैं. There are two friends who are talking about different goals. तो अगर हम बात करें फर्स्ट हैंड पे, 2013 में राघव had a goal. He wanted to get married in 10 years, right? And उसके बाद he wanted to go on a foreign vacation. That was one goal. Raghav ने क्या किया to achieve that goal? He started investing approximately 2,000 rupees per month. But उसमें मैजिक क्या है? मैजिक ये है that he did it for a sustained period of 10 years. 10 साल तक वो 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता रहा, और उसका लगभग 5 लाख रुपए जो है उसका अमाउंट सेविंग से बन गया in a period of 10 years. आप मैथ्स कर सकते हैं, गणित कर सकते हैं. 2,000 multiplied by 12 तो 24,000 रुपया, and multiplied by 10 तो उसने 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसका लगभग डबल 5 लाख रुपया हो गया. दूसरे अगर हम उसके दोस्त की बात करें, निशा एंड आदित्य. निशा एंड आदित्य, ये राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, उनका एक अलग गोल था. और उनका क्या गोल था? उनको अपने बच्चे को एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में 18 साल के बाद भेजना था. तो बच्चा जो है, बेटा बेटी अभी हुए थे, अभी ही और शी वाज जस्ट बोर्न, एंड दे स्टार्टेड प्लानिंग कि नहीं 2023 में हम उसको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजेंगे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी एक बहुत अच्छी चीज की. उन्होंने 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और वो 15 साल में, लगभग 15 साल में 50 लाख रुपए का टोटल अमाउंट बन गया, विच आई थिंक इन टुडेज टर्म्स इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ योर इंटरनेशनल ओवरसीज एजुकेशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी इन अ वेस्टर्न कंट्री.
तो ये मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू, शेयरिंग विद यू टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ investing regularly in equity mutual funds, small amounts which you can afford, has led to realization of big dreams. बड़े बड़े सपने जो हैं आपके छोटे छोटे कदमों से आप लोग इसको, इन सपनों को रियलाइज कर चुके हैं. एंड ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू कि कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है विच एन रेगुलर इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट अकम्प्लिश. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एंड वी डिस्कस दैट, 10,000 रुपए पर मंथ फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन अगर आपने इन्वेस्ट किया 15 ईयर्स के लिए, लाइक निशान आदित्य, 50 लाख रुपीज बिकम्स द अमाउंट. एंड दीज आर रियल एग्जांपल्स. ये रियल एग्जांपल्स, ऐसा नहीं है कि हम वी आर इमेजिनिंग और वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग. दिस इज एक्चुअली हैपेंड. दूसरा अगर हम लें चाइल्ड्स वेडिंग, ये भी एक गोल होता है. चिल्ड्रंस वेडिंग के लिए अगर आपने 2003 में 10,000 रुपीज इफ यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एवरी मंथ और आपने ये 20 ईयर्स के लिए किया, तो आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज जो है अमाउंट बन गया. ये देखिए कितनी मजे की बात है. एक और गोल हमारा बहुत फेमस है एंड एवरीबडी इज नाउ थिंकिंग अबाउट इट. देखिए इंडिया में पेंशन नहीं मिलती है, नेशनल पेंशन स्कीम शुरू हुआ है, अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है, बट इट इज नॉट सो प्रेवलेंट एंड इट इज नॉट पेनिट्रेटेड एवरीवेयर, राइट. बहुत गिने चुने यूजर्स हैं. रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी रियलिटी है. हम सबको रिटायर कभी ना कभी होना ही होता है. कुछ लोग 60 की एज में होते हैं, कुछ लोग 50 की एज में होते हैं. रिटायरमेंट के लिए अगर किसी को, ये भी एक रियल लाइफ केस स्टडी है, 15 करोड़ रुपया अगर उसको चाहिए टू एंश्योर कि दैट हिज और हर लाइफस्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट इज द सेम व्हेन शी वाज अर्निंग, उसके लिए पर मंथ 20,000 रुपए अगर आप साइड में रखें और आप हर महीने इन्वेस्ट करें फॉर अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स विच इज टिपिकली योर एंटायर वर्क लाइफ, आप एक्चुअली 15 करोड़ रुपया जो है आप कमा सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग कि कैसे आप एसआईपी करके हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जो है आप उससे अपना हर तरह का मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं. सो अगर आप ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये दिस इज नथिंग बट एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. यू कैन डू दिस ऑन अ वीकली बेसिस, यू कैन डू दिस ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस. आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं. मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो हम डेली करते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डेली एसआईपी, बट आप इसको अपने हिसाब से रन कर सकते हैं. Every month, small amounts, whatever you decide, will be debited at irregular frequencies, and this will create magic over a long term. Now, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक बिफोर इनिशिएटिंग एन एसआईपी आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक, व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल. इफ यू थिंक दैट यू आर वेरी वेरी रिस्क एवर्स, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कैपिटल जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, जरा भी 1%, 5% भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो मे बी इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू. एसआईपी तो एक माध्यम है, इट्स अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग. इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू. बट आई एम श्योर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं हु अंडरस्टैंड एंड हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग. दूसरा, आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, somebody wants to retire, somebody wants to cater for the education of his or her child. तो आपको गोल चाहिए. जब तक गोल नहीं होगा ना, एसआईपी करने का, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं. तीसरी चीज, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत क्लियर होना चाहिए. कितने टाइम के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो गोल है वो कब आएगा. विल इट कम आफ्टर 5 years, will it come after 10 years, will it come after 15 years? So if you get these three things right, then I think you can start doing an SIP. उससे पहले आप SIP मत करिएगा because it may not be the scientific way of deciding how to invest. Couple of things, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं हमेशा बिफोर इन्वेस्टिंग इन SIP. आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि मार्केट वॉलेटिलिटी से आप डरिए मत. अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है, कई लोग क्या करते हैं, दे डिसकंटिन्यू देयर SIPs. प्लीज डोंट डू दैट. मजा तभी आता है, आपका रिटर्न मैक्सिमम तभी लॉन्ग टर्म में जनरेट होता है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आए. अगर मार्केट नीचे गिरेगी, आपको मौका मिलेगा, यू कैन इन्वेस्ट मोर. या सेकेंडली, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी एडवाइजेबल, टॉप अप या स्टेप अप SIP. एवरी टाइम दैट you get an additional income, आपकी इनकम बढ़ती है, चाहे सैलरी बढ़े, चाहे प्रमोशन हो, और बिजनेस इनकम आपकी बढ़े, कंसिडर गिविंग अ प्रमोशन टू योर SIP ऑल्सो. हम लोग HSBC में ये कई बार बोलते हैं, SIP को प्रमोशन दें, SIP को भी प्रमोशन दें, राइट. सो एवरी ईयर 10%, 20%, जितना आप चाहें, आप अपने SIP को भी बढ़ाएं, बिकॉज ये अल्टीमेटली कंपाउंड करता है, राइट. सो ये 2-3 चीजें हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर स्टार्टिंग एन SIP. SIP के कुछ
बहुत सारे फायदे, देयर आर मेनी एडवांटेजेस. आई थिंक आई कैन टेक यू थ्रू 5 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एन एसआईपी जो आपके स्क्रीन पे हैं. पहला, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. सिंपल मायने में अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर मार्केट जो है वो महंगी है, अगर आज मार्केट ऊपर है और आप अपना 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 रुपया जो भी आप डिसाइड करते हैं, यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट टुडे, दैट will buy lesser number of mutual fund units because the market is high. Same thing if you do next month or same thing if you do next quarter, और आपका जो है मार्केट नीचे गिर जाती है, सपोज 5%, 3%, 10% करेक्शन आ जाती है, with the same amount that you are invested last month, you will be able to buy more number of mutual fund units. तो देखिए कितनी अच्छी चीज हो रही है. जब मार्केट सस्ती हो रही है, आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स मिल रहे हैं, और जब मार्केट जो है आपकी महंगी हो रही है, तो आपको उसी अमाउंट से लेस नंबर ऑफ यूनिट्स मिल रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू मेक मनी ओवर द लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज सिंपली पुट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. जैसे कि मैंने आपको बोला, सेकेंड पॉइंट इज नो नीड फॉर मार्केट टाइमिंग. यू डोंट नीड टू डिसाइड कि भाई आज सेंसेक्स 83,000 पे है तो मैं आज इन्वेस्ट करूं, या मार्केट आज 80,000 पे तो मैं आज इन्वेस्ट करूं. आप एक डेट डिसाइड करें, automatically your amount will be debited and the money will go into the mutual fund, which is indirectly investing into the equity market. Compounding benefit is the third biggest advantage of SIP. Every month, every fortnight, आपका जो भी साइकिल है SIP का, you are investing, और जो आपका जो रिटर्न है वो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यू अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. सिमिलरली यहां जो हो रहा है, आपका जो गेन है वो पिछले एक्यूमुलेटेड गेन के ऊपर आ रहा है. तो अगर आप लोग एसआईपी जो है हम लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल परपेचुइटी के लिए चलाएं, तो ये कंपाउंडिंग बेनिफिट बहुत मैटर करता है. ओके, बट इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, विच ऑल ऑफ अस हैव लर्नड इन स्कूल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस रिमेंबर, इट इज P1 plus rate raised to the power t, principal bracket 1 plus return, rate of return raised to the power time. रेस टू दी पावर जो है, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका रिटर्न क्या होगा, दैट इज टाइम. तो टाइम हमेशा याद रखिए, जब तक आप इसको लंबे टाइम के लिए नहीं खींचेंगे, कंपाउंडिंग बेनिफिट फेल कर जाएगा. फाइनली द लास्ट टू थिंग्स आर बीट इन्फ्लेशन. ये हमें आई थिंक शुरू से ही पता है कि इक्विटी इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू एसेट क्लासेस जहां आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा. अगर आपको रिटर्न बनाना है पोस्ट इन्फ्लेशन, तो इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट इज थ्रू एसआईपी. एंड द लास्ट पार्ट इज डिसिप्लिन. मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, आपका पिछले 1 साल 2 साल में इक्विटी मार्केट्स में बेनिफिट हुआ हो, या आपकी अभी मार्केट में डाउन हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आप नागा नहीं डालेंगे. यू विल नॉट स्किप योर एसआईपी. So please keep running this SIP month on month, quarter on quarter, and see the magic unfold. So these are the 5 big benefits of investing in an SIP. I think एक चीज जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, and I want to repeat that, कि एक पुरानी saying है, the early bird gets the worm, right? यहाँ worm की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ wealth creation की बात कर रहे हैं. And what is applicable there is also applicable to in the field of investing. ये स्लाइड आपको बताती है दैट द अर्लियर यू स्टार्ट योर एसआईपीज, द बिगर एंड द लॉन्गर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग. ओके, एंड ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ये देखिए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड इन एसआईपी, ये रेड बार जो है आपको दिख रही है, ठीक है. और ये हमने एग्जांपल दिया कि भाई एक हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 1,000 रुपए की एसआईपी एक इक्विटी म्यूचुअल में शुरू की, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और उन्होंने 20 साल में चलाई. सो सी व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डज. ठीक है, अगर आप देखें ये पिछले 20 साल का रिटर्न है. शुरू में पहले 1 साल 2 साल 3 साल, इफ यू फॉलो दिस ब्लैक लाइन, ज्यादा उनको मजा नहीं आ रहा है इन्वेस्टर को, नॉट मच वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड. इवन एट द एज ऑफ आफ्टर 9 or 10 years of investing, if you see the black line is very close to the actual investment में, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है. बट जस्ट सी व्हाट मैजिक इज बीइंग क्रिएटेड आफ्टर 10, 11, 12 years. Suddenly the amount invested is much lower than the profit and the total wealth, the market value of the investment. So this is what I'm saying कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितना अगर आप 20 साल में, 25 साल में, 30 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करेंगे, आई थिंक दैट 15, 20, 30 करोड़ which I was talking about after retirement is easily achievable. Okay, and इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, if I tell the same thing to you in a negative way, there is something called cost of delay.
ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स व्हिच आई वांट टू शेयर विद एवरीवन. और ये देखिए क्या बताता है दैट इफ somebody starts an SIP at the age of 25 and if somebody delays, भाई हम लोग में से बहुत लोग कहते हैं आज ये सैटरडे स्कूल सेशन हमें बहुत अच्छा लगा, मगर अभी थोड़ा देर है, अभी इन्वेस्ट आराम से करेंगे, अभी मुझे जो है आई हैव अदर एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ, I have to spend on a holiday, I have to look for a property, I have to buy gold and gift it to so and so. If you have that kind of a priority order and you delay your decision to start an SIP, what is the damage? What is the cost of delay? And this is a real case example. If all of you pay attention to this, I think most of you would definitely start your SIPs right now. वो delay, cost of delay क्या है? There is an investor who said कि मुझे जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए. I want to accumulate 3 crore rupees at the age of 60. Now, these are the monthly amounts which are required for an SIP to achieve the same goal. ये देखिए, somebody started at the age of 25 to achieve a target of 3 crore at the age of 60. The amount required to invest in an SIP was only 4,665, which is a very, very small amount if you consider the kind of expenses that we have today. However, if that person did not invest at the age of 25, suppose वो investor ने 5 साल डिले किया, तो वही अमाउंट जो है 8,600 rupees हो गया per month at the age of 30. The same amount, if delayed another 5 years, became 16,000 rupees. And somebody, some unfortunate investor who said कि मैं 45 साल की उम्र तक मैं SIP स्टार्ट नहीं करूं, और सडनली आज उनको एक भविष्यवाणी आई कि आज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए to achieve 3 crore rupees by the age of 60. That investor now has to invest 60,000 rupees per month to achieve the same 3 crores in the next 15 years. So I think I've proven my point here. The earlier you start, the better it is for you, the easier it is for you to achieve your goal whenever it is 15 years, 20 years, 30 years down the line. So ये जो cost of delay है ना, this is the most important lever which can make or break your goals and dreams. Okay, I think now what I can tell you is also a little bit about the volatility in equity. See, I told you the very simplest thing, that volatility is your friend when you are investing in SIP. और इस चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं. सम पीपल विल से कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है इक्विटी मार्केट में, मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूं. तो ये एक स्लाइड है जो आपको दिखाती है that the longer you hold your equity investments, the lesser the volatility, the lesser the chances of you losing your money or losing your capital. ये हमने क्या किया, देखिए ये हमने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के रोलिंग रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए हैं फॉर द सेंसेक्स. और ये हमने लिए शुरू से, जब से सेंसेक्स आया था 1979 से. रोलिंग रिटर्न का क्या मतलब होता है कि एवरी डे व्हाटएवर द मार्केट रिटर्न वाज, वी हैव इंक्लूडेड दैट. ठीक है, तो अगर आप देखें इन 3 year period your positive periods of returns are 90% and the return is about 16% per annum, एवरेज रिटर्न की बात करें. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दें, 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो आपका पॉजिटिव पीरियड्स बढ़ जाते हैं 93%. अगर आप 10 साल देखें, सपोज यू लुक एट any 10-year period in the last 30-40 years of the history of the Sensex, 99% of the time you would have got a positive return for that year, for that period. So again, I'm trying to tell you that the longer you hold on to your equity investments, whether you're doing it through SIP or you're doing it through lump sum, I think the experience for an investor is much more favorable and very, very positive. और रिटर्न जो है आपका एवरेज वही देखिए 14%, 15%, 16% के बीच में रहता है. So this is an important slide to show to you, to prove to you that if held on for longer periods, equity investments can become less volatile and the experience and the journey can be very, very smooth. ये देखिए पिछले इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं, दैट कई बार लोग बोलते हैं कि SIP जो है वो रिटर्न तभी देती है जब मार्केट ऊपर जाती है. I can only see value in my SIPs when the market goes up. ऐसा नहीं है. I explained that to you about 15-20 minutes back, if you remember, that market volatility is very, very important for SIPs. This graph actually shows you all the markets ups and downs which have happened in the last 23 years. ये बहुत ही मजेदार स्लाइड है. ये पूरी equity market की हिस्ट्री को कैप्चर करती है. So starting from various corrections
If you remember in the year 99 2000 there was a correction of 32%. आईटी बबल हुआ था उस टाइम, वो आईटी बबल बर्स्ट हुआ था. फिर 2008 में फिर 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एंड द मार्केट्स फेल बाय 45%. इफ यू लुक एट कोविड व्हिच वाज जस्ट रीसेंट 4 साल पहले, markets fell by about 20%. So I think there are many, in fact markets fell by 20%. But the good problem to have is that after every correction the market has recovered. After every dip the market has gone up. ये देखिए नीचे गिरा फिर ऊपर आया, नीचे गिरा फिर ऊपर आया. और यही जो चीज है जो मैं आपको बता रहा था, if month on month you are continuing your SIPs in the markets through mutual funds, when the market falls your amount buys more SIP units, and when the market goes up the same 5,000 10,000 rupees that you're investing buys lesser number of mutual fund units. So this is how over the last 22 years people have made money by investing into SIPs. Yeah, एक मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं एक बेनिफिट, मैंने SIP टॉपअप की बात की थी. सो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई थिंक whenever you have extra income, whenever you have extra surplus to invest, आपको SIP का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए. That because वो जो फॉर्मूला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, P multiplied by 1 plus rate of return raised to the power time, उसमें P जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी बहुत मैटर करता है. तो अगर आप सपोज करें आप 5,000 रुपए से अभी SIP शुरू कर रहे हैं और हर साल आप उसको 10% से बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट प्ले करेगा. आपका जो गोल है जो 20-25 साल के बाद आना चाहिए वो हो सकता है 10-15 साल में अचीव हो जाए. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन SIP टॉप अप एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट टू यू. ऑटो पायलट पे चलता है. आप यू कैन मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस टुडे टेक योर टॉप अप एज अ वन टाइम इंस्ट्रक्शन. यू कैन टेल देम कि एवरी ईयर इंक्रीज माय SIP बाय 10%. तो आपको खुद जो है एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऑटो पायलट पे होता है. So I think I have spoken enough for the last 15-20 minutes. If I have to just summarize, just give you a summary of what I explained, and then we can have questions from Rakesh, who's our moderator. Equity investing is very, very important because we have seen the long-term power of returns of equity market. In spite of corrections, जब भी correction आती है market में, उसके बाद जबरदस्त तरीके से market recover करती है. और long term में बहुत कम ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो इक्विटी की तरह इन्फ्लेशन को बीट करते हैं. सेकंड पॉइंट, एनी टाइप ऑफ योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल आप SIP से अचीव कर सकते हैं. चाहे वो मीडियम टर्म गोल हो, चाहे वो आपका अपना खुद का गोल हो, चाहे आपके बच्चों का गोल हो, चाहे आपकी रिटायरमेंट का गोल हो, SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैन हेल्प यू अचीव ऑल काइंड्स ऑफ गोल्स. थर्ड थिंग वी अंडरस्टूड एंड लर्न फ्रॉम दिस सेशन टुडे इज द बेनिफिट्स ऑफ SIP. सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी लर्नड अबाउट आर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. जब मार्केट नीचे ज्यादा खरीदेगा, जब मार्केट ऊपर वही पैसा आपका कम यूनिट्स खरीदेगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें कि जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो टाइम पीरियड की है. तो लंबे टाइम के लिए रन करेंगे तो उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी डिस्कस्ड इज स्टार्टिंग अर्ली एंड द डैमेज ऑफ डिलेइंग योर SIP डिसीजन. हर 5 साल के बाद अगर आप डिले करें कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, 5 साल के बाद करूंगा, तो वही अमाउंट जो आपके मन में है कि मेरे को 20 साल के बाद चाहिए, उसको अचीव करने के लिए हर 5 साल की डिले आपका SIP अमाउंट आपको डबल करना पड़ेगा. 5,000 रुपी इन्वेस्टमेंट विल बिकम 10,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट विल बी बिकमिंग 20 and 40,000. So if you want with lesser SIP amount to achieve a higher target amount, then you have to start early and you should not delay your investment. And finally we talked about the concept of promoting your SIP. अपनी SIP को promotion दीजिए. Top up your SIP. Like when you get an increment in your salary, like when you get additional business income, you should also increase every regular interval your SIP amount. So with that, I think I can end this talk, and I would encourage my friend Rakesh to have asked me some questions if he has any. Over to you, Rakesh. Thank you, sir. Thank you for such a insightful session on equity investing, and that through with the SIP route. So although many questions has already been answered, I'm able to see there are a lot of questions. बहुत सारे सवाल हैं. And अच्छा लगता है curiosity जान के investor से to put all these questions. But some of them which I wanted to take, एक सवाल ऐसा आया है कि कब तक SIP चलनी चाहिए. So how long I should run my SIPs? मेरी SIPs कब तक चलनी चाहिए? Somebody has asked like this. Sure. Screen sharing मैंने बंद कर दी है.
So now we can, I think now we can talk. So I think अगर हम बात करें टेन्योर की, टाइम पीरियड की, तो राकेश जो मैंने बताया, यूजुअली हम लोग शुरू में बोलते थे भाई 5-10 साल आप एसआईपी रन करें, फिर वो टाइम पीरियड जो है, बिकॉज मार्केट्स बिकेम वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, तो हमने कहा कि आप 10 से 15 साल रन करें. आई थिंक टुडे इट इज वेरी वेरी क्लियर, एज लॉन्ग एज यू हैव योर इनकम, एज लॉन्ग एज यू हैव अ सरप्लस, आपको अपनी एसआईपी रन करनी चाहिए. इनफैक्ट पीपल यूल बी वेरी सरप्राइज टू नो, और मे बी यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज यू आर लीडर्स इन द गेम ऑफ एसआईपी. आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल लोग अपनी सेकंड जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए भी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, so that they also start benefiting the moment a boy or a girl achieves majority और वो 18 साल 21 साल के हो जाते हैं. they don't have to start then, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनके लिए जब वो पैदा हुए, बर्थ हुए, स्टार्ट कर दिया. so this is also helping in intergenerational wealth transfer. तो मैं यही कहूंगा, एक वर्ड है परपेचुइटी. आप एसआईपी को परपेचुअली रन कीजिए. आप ये मत सोचिए कि मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए रन कर रहा हूं. बीच बीच में आपके गोल्स आते रहेंगे, जैसे जैसे आपके गोल्स आते रहेंगे आप उतना अमाउंट विड्रॉ करते रहिए, बट as long as you are earning, you should continue your SIPs. Rakesh. Thank you, sir. There is one another question that what is advisable? It is only SIP. Should I be running or should I be topping up it with some lump sum? कुछ पैसा में बीच में मेरे पास ऐसा आता है कि मुझे टॉप अप्स करने चाहिए. So सिर्फ SIP एडवाइजेबल है या लंप सम पैसा भी इक्विटीज में डालना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड ऐसी सिचुएशन राकेश सबके सामने आती है. आई एम श्योर आपके पास आई होगी, मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सडनली वी फील दैट देयर इज सम लिक्विडिटी. एसआईपी तो हमारा चल ही रहा है 5,000 10,000 रुपए वाला, जो भी हम एसआईपी कर रहे हैं, बट एक सडन लिक्विडिटी आती है तो उसको हम, एंड इफ यू डोंट नीड द मनी, तो एक टेम्पटेशन होता है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं. डेफिनेटली आई थिंक व्हाट आई सजेस्ट टू माय फ्रेंड्स एंड माय इन्वेस्टर्स इज कि आप, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको मैं यही हमेशा से इन्वेस्ट करता हूं कि एक डुअल स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट रन करिए. And that dual strategy is a combination of lump sum and SIP. I think that's a good thing to do. दोनों चीजों में क्या कॉमन है? मार्केट टाइम मत करिए. डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट कि आज अगर मार्केट नीचे है तो मैं आज डाल देता हूं, बिकॉज जब आप वेट करते रहेंगे ना, पिछले 5 साल से लोग करेक्शन की वेट कर रहे हैं, आफ्टर कोविड करेक्शन नहीं आया, राइट? तो यही प्रॉब्लम है. तो हम लोग टाइम करते रहते हैं. तो एसआईपी में आपको टाइमिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हर महीने आपका पैसा जा रहा है. लमसम में भी प्लीज आप टाइम मत करिए. बहुत पुरानी saying है, it is not the time in the market, but not the timing of the market, but the time you spend in the market. So I think यही चीज हमें देनी चाहिए. 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम उसी हिसाब से डालें. लमसम डालें, उसको 5 10 15 साल के लिए आप इक्विटी में छोड़ दीजिए, और हर महीने अपनी जो एसआईपी है उसको भी रन करते रहिए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लमसम एज वेल एज एसआईपी. आई विल नॉट से डू वन एंड नॉट द अदर. Right. So one another question, or in fact last I'll take that, and the very interesting question somebody has asked, that what is the shortest long term? That what is the shortest long term? Shortest long term क्या है? Everybody used to talk about, हमारे advisors, industry सब long term की बात करते हैं. तो कह रहे हैं कि shortest. शॉर्टेस्ट लॉन्ग टर्म, दैट इज एन इंटरेस्टिंग. ये तो आई थिंक ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है. इसको हम ना, एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है, अगर हमें ग्रामर याद हो पुरानी, एक इंग्लिश में जैसे प्रेपोजिशन, नाउन, वर्ब, ऐसे टर्म होती है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन मतलब ऑपोजिट वर्ड्स आप सेम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, है ना? सो आई थिंक सो ये एक आपने एक स्टेटमेंट बना के दी, जिसने भी आपसे पूछा शॉर्टेस्ट लॉन्ग टर्म, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता नहीं है. लॉन्ग टर्म इज सिंपल. इक्विटी मार्केट्स की अगर हम बात करें, ये टर्म जो है लॉन्ग टर्म, ये क्यों आई, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. ये टर्म लॉन्ग टर्म इसलिए आई है क्योंकि as an investor, when you are investing into equity mutual funds, the mutual fund, Rakesh, is investing into companies, right? Stocks में invest कर रहा है. अब ये जो companies हैं, ये जो companies हैं, ये अलग अलग सेक्टर से आती हैं. IT होता है, कंजम्पशन होता है, फार्मा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, 40 ऐसे सेक्टर है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हर कंपनी जब तक प्रॉफिट नहीं बनाएगी, आपकी शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं बनेगी, शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, और जब तक शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी. ये सारे रिलेटेड हैं, एक ही रिश्तेदारी में आते हैं. कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी बहुत सारे साइकिल्स में से जाती है. कभी मंदी चल रही है, कभी उसके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाती है, कभी नई कंपनी आके उसको कंपटीशन देने लगती है. सो इट इज नॉट अ स्मूथ राइड.
आज हमने बिजनेस शुरू किया, एक्सपेक्ट करना कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल में कंपनी मुनाफे बनाना शुरू कर देगी, ये बहुत रेयरली होता है। सो हम लोग जो शुरू से पढ़ते आए हैं और दो दशक से ज्यादा हो गए हैं मुझे ये समझते हुए दैट कंपनी का जो एक साइकिल होता है जिसको हम कैश टू कैश कहते हैं, कैश आज इन्वेस्ट किया, वो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट बिकने के बाद फिर वापस कैश आया और उससे हमने प्रॉफिट बनाया, उस कैश टू कैश साइकिल को लगभग 5 से 7 साल देने पड़ते हैं। सो नई कंपनीज के लिए द लॉन्ग टर्म इज 5 to 10 years। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, जो ऑलरेडी चल रही हैं, उनके लिए हम मिनिमम 3 to 5 years बोलते हैं। इसलिए मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लॉन्ग टर्म। एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट योर कंपनीज विच आर एक्चुअली मेकिंग यू मनी थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, अगर उनको हम 5 से 10 साल नहीं देंगे तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेकार है। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू द आंसर थ्रू वेरियस एग्जांपल्स, Rakesh. No, right. Thank you. And in fact, I also have one answer to it that whenever जब आपके financial goals, aspirations पूरे हो जाएं, so I think that is something which you can assume like as this is your shortest long term. So still there are a lot of questions, but just considering the limitations of time, so will not take any other. And obviously because we have partners also into this call, जिनके investors आज हमारे साथ इस call में आए हुए हैं, so hopefully they'll definitely take all these basic questions to make their all investors to understand about. So with this I wanted to thank you first of all every one of the investors, those who have joined this call. Thank you Rajat sir for taking us, for guiding us the best route to invest into equity markets. Obviously जहाँ पे risk की बात आती है उसको mitigation के लिए SIP is one of the best way, जहाँ पे returns की बात आती है, जहाँ पे wealth creation की बात आती है, so this is one route by which people can create wonders over a period of time. So thank you for guiding and thank you for taking us through this session. Any last comments you wanted to? No, absolutely Rakesh, it's a privilege. जिस तरह से आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है ऑन सैटरडे लर्निंग, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम एन HSBC म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव, लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विद यू ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर many more such interesting topics, and very happy to share our experiences with all our partners and investors going forward. Thank you. Yeah, thank you. So thank you everyone, and I think we can wind up this call here. Thank you so much. Thanks.